जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। There is no difference, repeat, no difference between Aurangzeb apologists and Holocaust deniers, for which there is a prison sentence in 16 countries in Europe. Twisted minds in need of medical intervention. But as far as this debate is concerned, I like to make two important points. The fact is, Abu Azmi is the Jinnah who doesn't eat bacon. But it's not about what these demented, brainwashed zombies are doing, Rahul. It's about what we are doing. And bear with me. Rahul, history that is written by the victors is peddled by the vanquished. And I'm afraid we are vanquished. The signal sent by Prime Minister Modi when he celebrates Khusro, the bigot who celebrated the subjugation of Hinduism, the destruction of Somnath, and sang odes to forced conversion, quote, "The whole country by means of the sword of our holy warriors has become like the forest denuded of its thorns by fire," unquote. The signal sent by Prime Minister Modi when he sends a chadar to Moinuddin Chishti, the Hanafi Sufi saint who fought alongside the demonic Muhammad Ghori, helped capture Prithviraj Chauhan, unsparingly converted Hindus and said, quote, "I will raise these Anasagar Hindu temples to the ground. I have come to India to fight the holy war against infidel," unquote. The signal sent by Prime Minister Modi when he eulogizes Saint Francis Xavier, the proponent of Goa Inquisition that led to conversion, torture and murder of countless Hindus, and who said, quote, "Hindu gods and their idols are as dirty as they are ugly and horrible to look at, and witnessing the destruction of temple idols give me so much joy," unquote. The signal is that it is okay to normalize Hindu haters. It is okay for Hindus to be humiliated, for cruelty against Hindus to be airbrushed. Rahul, nations weaken not because of their past, but rather by how they are taught it. And for 70 years, we've been taught to forget historical injustices. We've been taught to eulogize genocidal mass murderers. And so India is a nation that glorifies self-loathing and self-flagellation in equal measure. A nation where people still go and pray at the grave of Aurangzeb, who imposed tax only on non-Muslims, beheaded Guru Tegh Bahadur, entombed Sahibzadas alive, decapitated Sambhaji Maharaj, demolished Kashi Vishwanath, and murdered 4.6 million Hindus. A nation that hasn't read the authentic biography of Aurangzeb, Masir Alamgiri, that says, quote, "In 1669, on orders of Aurangzeb, the Kashi temple was demolished." And here is Sir Jadunath Sarkar's translation of Masir Alamgiri, page 52, quote, "Aurangzeb, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels, and with the utmost urgency put down the teachings and public practice of the religion of these misbelievers," unquote. That in January 1670, on orders of Aurangzeb, the Keshav Dev temple, the birthplace of Lord Krishna, was demolished. Aurangzeb had idols brought to Agra to be scattered under the steps of Jahanara Mosque so they'd be trodden on. Rahul, if the holiest shrine of another religion was demolished and people of another faith stomped their dirty feet on the sacred relics as they walked inside the place of worship, this country would have witnessed a civil war. But this is a nation that knows more about the Mughals than about Shivaji, Rana Pratap and Prithviraj Chauhan. A nation where Guru Arjan Dev was forced to sit on a hot plate and literally cooked alive by the Mughal Emperor Jahangir. And what do? We immortalize Jahangir in our films as the affable, feather-toying romantic Salim. A nation where celebrated historian Ramchandra Guha laments Aurangzeb Road being renamed, but doesn't want Delhi roads to be named after Chhatrapati Shivaji Maharaj, the man who birthed an empire stretching from Peshawar to Plassey, because in Guha's words, quote, "He was a little-known regional figure and a feudal lord who endorsed caste hierarchies," unquote. Rahul, this is a nation where we eulogize invaders who burned Nalanda, the greatest university in the world, just 30 seconds. A nation where celebrities take pride in naming their son Taimur, where politicians gush when called by their nickname Tipu, the man who demolished temples and converted even dead Hindus. Rahul, India is a nation whose history has been written by those who hated Hindus, Hinduism and Hindustan. मजा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं मुग़ल वंश के ऊपर, औरंगज़ेब के ऊपर और भी सारे जो आक्रांता लोग हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में कब्ज़ा करने की कोशिश किए थे, उनके विरोध में इनकी बहुत सारी टिप्पणी है इस वीडियो में, और भी मूल कारण उसके क्या थे उसके ऊपर भी अपना राय दिया है इन्होंने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देखिए,
इस भारतवर्ष को कब्जाने की कोशिश बहुत सारे सभ्यताओं ने की है। ग्रीक सभ्यता की, मैसेडोनिया राज्य से एक राजा जो दुनिया को वश में करना चाहता था, एक वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था, एक विश्व विजेता बनना चाहता था, उसका नाम था अलेक्जेंडर। वो भी भारत में आया था। उसको इधर मुखी खानी पड़ी क्योंकि उसको पता था कि पोरस को हराने के बाद, क्योंकि पोरस एक छोटा राजा था जो बोलते हैं हिस्टोरियंस, तो फिर आगे जाके उसको हमारे भारतवर्ष के जो बहुत पावरफुल राजा हैं जिनकी लाखों की फ़ौज है उनसे लड़ना पड़ेगा। तो फिर उसकी जो सेना थी उसको बहुत निराशा हुई, तो फिर उसको वापस जाना पड़ा हार के भारतवर्ष से। और वो रेजिस्टेंस सब लोगों ने देखा था। तो फिर बहुत उसके होने के बाद बहुत सालों 100, 500, 1000 साल बाद ये जो इस्लामिक आतंकी आक्रांताओं ने सबसे पहले बिन कासिम ने कोशिश किया। उस कोशिश की सफलता मिली क्योंकि हमारी एक एकजुटता थी वो नहीं थी, और सिंध तक पहुंच गए। सिंध में विजय मिला इनको, और उधर जो मंदिरें थी, दूसरे जो हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे, सब चीज़ों को तोड़ दिया था उधर उस बिन कासिम ने। और वो भाग के फिर से उधर की लूट औरतों को लेके जाके वो अपने अरब में लेके गया। उसके बाद उसके जो दूसरे सिपा सलार हैं वो आने की कोशिश किया था। तब पप्पा रावल ने एक बहुत बड़ी सेना बना के, पप्पा रावल, नागभट्ट, पुलकेशी जो हमारे दक्षिण के राजा थे, मध्य भारत के राजा थे, और भी बहुत सारे राजाओं ने एक बहुत बड़ा एक कन्फेडरेसी बनाया। उस कन्फेडरेसी को हेड कर रहे थे पप्पा रावल, और उन्होंने इस जो एक इन्वेडर्स थे इनको बाहर खदेड़ फेंक दिया, बहुत दूर जाके फेंका। सब बहुत सारे जो हिस्टोरियन से ये भी बोलते हैं कि ईरान तक फेंक दिया था। और आते आते भारत के अंदर चौकियों के ऊपर चौकी बनाए। और रावलपिंडी नाम का जगह भी आपको पता होगा, वो किसके ऊपर पता है? पप्पा रावल के ऊपर बनाया वो रावलपिंडी। फिर ये एक रावलपिंडी, फिर ये एक था। और उसके 500 साल बाद सिंध में जब इन्होंने अपना कब्ज़ा कर दिया था, तो फिर 500 साल लगे इनको भारत के अंदर आने तक। और उसके बाद तरेन में पहला युद्ध हार गए। दूसरा जो बैटल ऑफ तरेन था उसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान ने जो पहले युद्ध में गलती की थी, गजनी को हराने के बाद भी छोड़ दिया, वो छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। और उस गलती की उनको बहुत बड़ी एक शिकस्त मिला दूसरे युद्ध में। और उस शिकस्त के कारण इनकी जो एक पावर है वो थोड़ी सी बढ़ी, और उन्होंने हमारे जो सोमनाथ मंदिर हैं और भी बहुत सारे मंदिर हैं उधर जाके तोड़े। और तब भी बहुत सारे राजाओं ने रेजिस्टेंस किया था। तो फिर धीरे धीरे इनका जो एक सर्कमफ्रेंस है ना, एक दायरा है वो बड़ा। तो खिलजी वंश आया, दिल्ली सल्तनत आया, और भी बहुत सारे सल्तनत आए। और थोड़े सल्तनत थे, पावरफुल थे, पर उनका जो एक कार्यभार था वो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ करता था। वो 20-25 साल, 50 साल, 60 साल इतना ही हुआ करता था। पर उसके बीच में एक राजा आ गया, वो समरकंद से, उज़्बेकिस्तान से, बाबर। और बाबर ने आके हिंदुस्तान में मुग़ल वंश नाम की एक जो तिमरिड डायनेस्टी है उसको सबसे पहले राजा बना उसका, और हिंदुस्तान में इसने अपना कैंप बनाया और बहुत संघर्ष किया और दिल्ली में कब्ज़ा कर लिया लोधी को हरा के। उसके बाद मेवाड़ के राजपूताना के जो सबसे पावरफुल राजा थे राणा सांगा, उनको कुमान युद्ध में एक स्टेलमेट में बहुत बड़ा
हार नहीं कर पाए, पर हमारे जो राजपूत नेता थे वो जीत भी नहीं पाए थे। तो फिर वो एक युद्ध हुआ। उसके बाद जो हिंदुस्तान के मध्य भारत के जो हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का जो पावर है वो कम होते गया और इनका पावर बढ़ते रहा। एंड में जब अकबर आया तब तक राजपूताना के बहुत सारे राजाएँ थे, उन्होंने संधि कर ली थी मुग़लों से, क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी वो एक स्टैंड स्टिल ज़मीन थी और बहुत सारे युद्ध हुए थे। उसमें साका जौहर वौहर के कारण सेनाओं की जो लोगों की जो किल्लत है वो पड़ी और लोगों को लगने लगा कि हम कितने सारे अपने युद्ध में अपने लोगों को हारते रहेंगे। तो फिर उन्होंने संधि करके हाथ बढ़ाया, पर एक राज्य उसमें भी था, मेवाड़ राज्य, उसने हाथ नहीं बढ़ाया। महाराणा प्रताप ने अकबर को बहुत बड़ी चुनौती दी, पर उनका जो राजस्थान का जो लैंड था उसको वो अपने राज्य साम्राज्य को और भी ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए, क्योंकि जो दूसरे राज्य थे उनके पास अभी संधि हो गई थी और वो मेवाड़ को पहले जो अधीन हुआ करते थे वो मेवाड़ के अधीन नहीं रहे और मेवाड़ में ही सीमित हो गए हमारे राजपूत की जो रेजिस्टेंस थी महाराणा प्रताप की। तो फिर ये एक चुनौती थी। तभी हमारे दक्कन में शेर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म हुई और उन्होंने बहुत पावरफुल तरीके से युद्ध लड़ा। जो राजपूतों का जो एक गलती की थी वो गलतियों को उन्होंने ठीक तरह निवारण किया। उसका निवारण ऐसे किया कि उन्होंने चाणक्य नीति को सबसे पहले रखा ऊपर। उनको पता था कि उनको कब पीछे जाना है, कब आगे जाना है, कब कैसे लड़ना है, कैसे लोगों से। जब वो अफजल खान के पास जाते थे शिवाजी महाराज, तो एक आर्मर भी पहन के जानते थे, वागनक भी लेके जाते थे ताकि उधर कुछ धोखा दे तो फिर धोखे का उत्तर दे पाए। अपने जो दूसरा बंदा जब लड़ता है तो फिर उसका शस्त्र नहीं होता है, तो फिर आप भी शस्त्र के बिना लड़े। ऐसा जो सोच है उसका सोच में बिल्कुल मेल नहीं था शिवाजी महाराज का। और शिवाजी महाराज को गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा महारत थी। उनको पता था कि मैं कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ, मेरे पास कैसे कैसे जो एडवांटेजेस हैं उनको पूरी तरह उन्होंने यूज़ किया। उनको पता था कि सह्याद्री, कोंकण और भी बहुत सारे जगहें हैं जो महाराष्ट्र में, वो गढ़ हैं, उधर फोर्ट्स हैं, उस फोर्ट्स के ऊपर कैसे मैं ये आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, मुग़ल साम्राज्य, इन सब को हरा सकता हूँ। तो फिर हमारे ऐसे राजा थे और उनके बेटे संभाजी महाराज, उन्होंने भी यही काम किया। तो फिर ये औरंगज़ेब इतना क्रूर क्यों है? इस वीडियो में बात औरंगज़ेब की हो रही थी। वो क्रूर इसलिए क्योंकि वो एक कट्टरपंथी सोच का था। उसने अपने फरमानों में ये भी बोला है कि सारे के सारे हम जो हिंदू हैं हमारे साम्राज्य में उनको हम इस्लाम में लेके आना चाहते हैं। और उसकी कोशिश उन्होंने बहुत सारी की। हमारे सिख गुरुओं को मारा, हमारे संभाजी महाराज को एक टॉर्चर करके मारा, आँख फोड़ दी, उनकी स्किन का जो है उसको पील कर दिया, आँख में चिली पाउडर डाला, कान को काट दिया, टंग को काट दिया, सब कुछ काट दिया। उनका पूरी ज़िंदगी का बेड़ागर्क ने बहुत यातनाएं दी। उनको टुकड़े टुकड़े करके नदी में फैला दिया, ये भी हिस्टोरियन बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि कुत्तों को खिला लिया उनकी बॉडी को। इतना क्रूर बंदा था वो। और भी बहुत सारे लोगों से ऐसी क्रूर हरकतें की थी उसने। बहुत सारे जो हमारे हिंदू मंदिर हैं उसको भी तोड़ा था इसने और हिंदुओं को धर्मांतरण भी करवाया था। तो फिर ऐसे बंदे को हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अबू आज़मी, ये अखिलेश यादव और बहुत सारे लोग हैं, ये महिमा मंडन करते हैं इनकी और इनका विचारों में चलते हैं ये लोग। और उसका ही विरोध हो रहा है हमारे देश में। ये छावा मूवी के कारण
अच्छा काम हुआ कि देश के लोगों को पता चल रहा है हमारा इतिहास, खासकर मराठा इतिहास। महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता है, वो तो पूछते हैं शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को। तो फिर हमारे देश के जो दूसरे प्रांत हैं उन लोगों को भी पता चलना चाहिए और इन आक्रांताओं का निवारण होना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय हिंद। टेक केयर दोस्तों।